ये देखना, इसका मैंने साइज देखा है 4.85, चढ़ जाएगी है? हो जाएगा, ठीक है, हो गई है, शुक्र हो गई है, हो गया। थोड़ा सा टाइम लेता है, बाकी कोई इशू नहीं। इसके ना 129 और पता नहीं इतनी स्लाइड्स थी। थैंक यू। Very good morning to all of you. Today our topic of lecture is concept of cultures. We will learn about cultures, that what is culture. Maybe you all people are familiar with the culture. कि culture क्या होता है? We all belongs to cultures and we know what is the present in the culture, what is the external thing in the culture and what are the internal things in the cultures. So ground rules for this is be attentive, do not leave the room during lecture. That means do not disconnected and do not talk, do not create disturbance, switch off your cell phone and shut down your laptop class. But in this class, this is important to on your mobile and it is the matter of classroom. So class participation is highly appreciated. Question answer will be entertained at the end of the presentation as a culture perspective. Objective, we will learn the topic of culture is introduction, definition of culture, type of culture, characteristics of the culture, classification of the culture, different viewpoints, perspective on culture, nature of culture, and culture diversity, component of culture, function of culture, influence of culture on health and illness, role of nurse in culture practices, and also references we will see. So I already accepted your good morning. Please concentrate on the lecture. I know you all are loves me and I also loves you. So please do not send me again and again good morning. Pay attention on the lecture because this is very important for you. So first of all, how sociologists define cultures? Sociologist जो हैं माहिर जो हमारे पास जो sociologist हैं यानी कि जो ऑथर हैं या जो माहिर हैं इसमें कल्चर के माहिर हैं these are the sociologist and what is their perspective to define the culture. कल्चर को किस तरीके से जो डिफाइन करते हैं. Culture is one of the most important concept within the sociology because sociologists recognize that it plays a crucial role in our social lives. ठीक है. सो कल्चर और सोशियोलॉजिस्ट के मुताबिक कल्चर जो है वो एक बहुत अहम तरीन जो है कॉन्सेप्ट है सोशियोलॉजी में. अकॉर्डिंग टू द सोशियोलॉजिस्ट उनको उन्होंने कहा है कि उनके मुताबिक जो है कि ये एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल जो है अदा करता है. कल्चर जो है सोशियोलॉजी के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है. विदाउट नोइंग द कल्चर सोशियोलॉजी एग्जिस्ट नहीं कर सकती. ठीक है. अनटिल अनलेस अगर एक सोशियोलॉजिस्ट को ये नहीं पता कि कल्चर में पैटर्न क्या है, लोग का बिहेवियर क्या है, एक्शन क्या है, ट्रेडिशंस क्या है, रिलीजन्स क्या है, व्हाट आर द प्रैक्टिसेस, ठीक है, इन्वॉल्व इन द कल्चर. सो जब तक कि वो कल्चर के पर्सपेक्टिव से किसी चीज़ को अंडरस्टैंड नहीं करेगा वो सोशियोलॉजिस्ट नहीं हो सकता और उसकी स्टडी जो है अप्रोप्रिएट नहीं हो सकती. इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर द शेपिंग सोशल रिलेशनशिप. Through culture, we are shaping our relationship because through the interactions, having a relationship with each other, maintaining the challenges, social orders, and determining how we make sense of the world and our place in it, and in shaping our everyday action and experiences in society, it is composed of both material and non-material and material things. एज यू नो हमने सीखा कि जो किसी भी सोसाइटी को अगर आपने अंडरस्टैंड करना है तो विदाउट नोइंग द कल्चर ऑफ द सोसाइटी वी विल नेवर रिकॉग्नाइज द पैटर्न ऑफ कल्चर विद पैटर्न ऑफ कल्चर. ठीक है. विदाउट नोइंग द पैटर्न ऑफ कल्चर वी विल नेवर स्टडी द सोशियोलॉजी. हमें कल्चर के किसी भी सोसाइटी के कल्चर के पर्सपेक्टिव को समझना बहुत इम्पोर्टेंट है बिकॉज कल्चर जो होता है वो सोसाइटी का एक अहम जुज है. ठीक है. जिसकी जो इम्पोर्टेंस है वो क्या रिलेशनशिप को शेप देता है. इससे जो हमारे चैलेंजेस हैं और जो हमें प्रॉब्लम्स होते हैं हम उनको ओवरकम करते हैं. इनके ज़रिए हम सेंस करते हैं रियल वर्ल्ड के अंदर के अब कि हम कौन हमारी क्या जगह है और हमारा क्या पर्पस फंक्शन है, क्या है टू परफॉर्म आवर डेली लाइफ्स. ठीक है. सो इसमें जो है
क्योंकि कल्चर ही एक ऐसी चीज़ है जिसके ज़रिए हम नॉलेज को गेन करते हैं, सेंस करते हैं, कॉमन सेंस होती है, हमारी assumptions होती हैं एंड हमारी एक्सपेक्टेशंस होती हैं. वी आर फुलफिल these things to maintain the relationship and have a sense to or sorry we make sense of the world or place in it. ठीक है. So in shaping our everyday actions and experience in society, इससे जो है वो एवरीडे हमें एक हमारी सोसाइटी के अंदर जो है कल्चर को शेप मिलती है कि कौन से जो हमारे एक्शन इज अप्रोप्रिएट हैं एंड विच आर नॉट अप्रोप्रिएट to behave in a certain circumstances. It is composed of both non-material and material. Non-material जो है ये क्या है जो कि physical जो है क्या है फिजिकल ऑब्जेक्ट में नॉन फिजिकल ऑब्जेक्ट होते हैं. ठीक है. और मटेरियल है जो कि फिजिकल ऑब्जेक्ट में जो एग्जिस्ट करते हैं. अगर हम उसमें देखें तो फिजिकल में हमारे पास क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं. फिजिकल में यानी कि जैसे हम कह सकते हैं इंक्लूड बिल्डिंग्स, किसी चीज क्लोथिंग है, टूल्स है, कोई भी चीज जो फिजिकली एग्जिस्ट करती है हम उसको क्या कहते हैं मटेरियल कल्चर. और नॉन मटेरियल जो है नॉन फिजिकली जो हम देखते हैं कि जो फिजिकल मीनिंग जैसे एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है. ठीक है. रूल्स हैं, ओपिनियंस है, आइडियाज हैं, बिलीव्स हैं. ये क्या है हमारे पास जो नॉन मटेरियल कल्चर है ये मिलकर एक कल्चर को फॉर्म करते हैं. ठीक है. तो कल्चर में बहुत सारी चीजें होती हैं जो कि कल्चर को फॉर्म करती हैं, जिसमें हमारा रिलीजियस पैटर्न आ जाएगा, हमारे बिलीफ है, वैल्यूज है, एवरीथिंग व्हाट इट इज कंसर्निंग टू योर फीलिंग्स. ठीक है. और एग्जिस्टिंग इन फिजिकल फॉर्म ऑल आर द फॉर्म ऑफ कल्चर. Culture is one of the most important concept in sociology. So it's intrinsic values. Mean इसमें क्या होते हैं आपके पास क्या इंट्रिंसिक वैल्यू आपकी एक्सटर्नल वैल्यूज होती है जिसके अंदर जो है कल्चर प्रोवाइड इम्पोर्टेंट सोशल एंड इकोनॉमिक बेनिफिट. ठीक है. आपको सोशल बेनिफिट भी देता है और आपको इकोनॉमिकली भी देता है बिकॉज बाय सोशल इज हैविंग अ सोशल बाउंड्री एंड इकोनॉमिक आपको जो है रिसोर्सेज मिलती हैं टू सर्व द सोसाइटी, टू अर्न इन द सोसाइटी, टू इम्प्रूव योर बेटर लाइफ. So with improved learning and health, increased tolerance and opportunity to come together with others, culture enhance our quality of life, increase overall well-being for both individual and community. So through the intrinsic values, ठीक है, जो हमारी external चीजें हैं जो कल्चर में एग्जिस्ट कर रही होती हैं, ये सारी चीजें हमारे अंदर टॉलरेंस को भी प्रोड्यूस करती है और हमें ये एक दूसरे के साथ जो है कम टुगेदर अपॉर्चुनिटी टू कम टुगेदर विद अदर्स. तो इसके जरिए हमें हमारा एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप बनता है. कल्चर से जो हमारी लाइफ जो है थ्रू इंटरेक्शंस एंड हैविंग क्वालिटी ऑफ लाइफ को जो इंक्रीज करती है बहुत इंडिविजुअल और कम्युनिटी लेवल पे. ठीक है. सो नो ह्यूमन सोसाइटी कैन एग्जिस्ट एंड डेवलप विदाउट इट्स कल्चर. कोई भी सोसाइटी किसी भी कल्चर के बगैर कभी भी एग्जिस्ट नहीं कर सकती है. विदाउट कल्चर या विदाउट बिलीफ, आइडिया, पैटर्न्स के बगैर आप किसी कल्चर को अंडरस्टैंड ही नहीं कर सकते हो. सो द मेन डिफरेंस बिटवीन द एनिमल एंड द ह्यूमन सोसाइटीज आर कल्चर ओनली. ठीक है. सो ये दोनों को जो हमें जो रिकॉग्नाइज करती है एज अ ह्यूमन इज ओनली कल्चर. वरना इंसानों और जानवरों के दरमियान जो हमें डिफरेंशिएट चीज कर रही थी वो हमारा कल्चर होता है. बिकॉज हैव यू सीन इन एनिमल देयर इज अ नो कल्चर. So animal society have no culture because they do not have the system of learning and transmitting social experience. Sociologists are keenly interested in the study of our culture because the study of human society is incomplete without it. ठीक है. इसलिए सोशियोलॉजिस्ट का जो स्पेशल इंटरेस्ट है और फोकस है वो किस पे, कल्चर पे है, ताकि कल्चर के पर्सपेक्टिव से जो ह्यूमन स्टडी है वो क्या करती है, हमें नॉलेज प्रोवाइड करती है. वी आर अंडरस्टैंडिंग द पैटर्न ऑफ द कल्चर्स एंड जो उनके डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जो एक्शंस है, बिहेवियर है, वी अंडरस्टैंड. सो दैट इज व्हाई वी कैन स्टडी ओनली सोशियोलॉजी. सो क्लियर हो गया. Culture is very important and it is very detailed topics. Culture is the most important concept in social sciences. It includes value, belief, behavior, material, object that together form a people way of life. यानी कि ये क्या है, कल्चर जो है एक बहुत इम्पोर्टेंट सोशल साइंस है.
सोशल साइंस आपने बड़े अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड किया कि सोशल साइंस कैसे है, ठीक है। तो सोशल साइंस जिसमें हम इंसान के जो है थ्रू इन्वेस्टिगेशन जो है सारी चीज़ों को अंडरस्टैंड करते हैं, उनके प्रॉब्लम को, उनकी जो आइडियाज़ को है, जो कि फिजिकल साइंस में है या सोशल साइंस के अंदर है। हम दोनों पर्सपेक्टिव से, इसलिए दैट्स वी कॉलिंग इट सोशल साइंस, हम इसको सोशल साइंस कहते हैं, ठीक है। वी आर कॉलिंग इट सोशल साइंस। मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है ना? So we will talk about culture is the most important concept in social sciences. It includes value, belief, behavior, material, object that together form a people way of life. इसमें जो आपसे बात करेंगे मटेरियल और नॉन मटेरियल की। नॉन मटेरियल में जैसे मैंने आपको बताया, नॉन मटेरियल में क्या जाती है, ये हमारे एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज आ जाते हैं, लाइक बिलीफ, आइडिया क्रिएटेड बाय द मेंबर in the certain society. Example of non-material culture include traffic law, war, words, dress code, ठीक है। ये हमारे क्या आ जाते हैं नॉन मटेरियल। मटेरियल में क्या, tangible object created by member of the society include the item or society find of value. Examples are include car, building, clothes and tools, ठीक है। These are the example of material culture. जो material resources में physical form में आपको चीजें नजर आएंगी वो हमारी क्या है, material culture है। अब हम डिफरेंट जो साइकोलॉजिस्ट हैं और जो सोशियोलॉजिस्ट हैं उनके पर्सपेक्टिव से जो है हम इनकी टर्म को भी अंडरस्टैंड करेंगे, और जितना भी हमने कॉन्सेप्ट इसका पढ़ा है, इंट्रो पढ़ा है, वो सारी डेफिनेशंस में ये सारी चीज़ें आप देखेंगे कि इंटरलेट कर रही हैं। एडवर्ड बी टेलर ने कहा है, कल्चर इज दैट कॉम्प्लेक्स होल विच इंक्लूड नॉलेज, बिलीफ, आर्ट, मोरल, law, custom and any other capacities and habit acquired by man as member of the society। यानी कि कल्चर एक बहुत कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है जिसके अंदर बहुत सारी चीज़ें होती है, जिसके अंदर नॉलेज होता है, कल्चर का नॉलेज, उनके बिलीफ होते हैं, वो उनको जो आर्टिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से उनका जो प्रेजेंटेशन होती है, उनकी मोरल्स हैं, उनके अपने लॉ, स्टैंडर्ड, कस्टम्स होते हैं, ठीक है। एंड द अदर कैपेसिटी एंड हैबिट एक्वायर्ड बाय मैन, जो कि इंसान कल्चर से सीखता है एज अ मेंबर ऑफ द सोसाइटी, इज कॉल्ड कल्चर। एडवर्ड पी टेलर और रॉबर्ट रेडफील्ड इन देयर डेफिनेशंस, उन्होंने ये कहा है कि दिस एसेंशियल फैक्टर इज दिस एक्विजिशन, इन दिस एक्विजिशन थ्रू द ट्रेडिशन इज द एबिलिटी टू लर्न फ्रॉम द ग्रुप, ठीक है। कि ये जो इस ट्रेडिशंस के जरिए ये बहुत एक एसेंशियल जो है एक्विजिशंस है, जिसमें प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग things through the tradition is the ability to learn from the group, because we are learning from each others and man learn his behavior। जो इंसान जितना भी एक्शंस और बिहेवियर लर्न करता है, ऑलवेज लर्न फ्रॉम द कल्चर एंड दिस बिहेवियर विच इज लर्न डिनोट दिस कल्चर। और जो बिहेवियर आप लर्न करते हैं दैट इज डिनोट क्या करता है, वो पॉइंट करता है कल्चर को प्रेजेंट करता है। सिंगिंग है, टॉकिंग है, डांसिंग है, ईटिंग है, बिलोंग्स टू द कैटेगरीज ऑफ कल्चर। यू नो, उनके हर एक आपने देखा, उनके म्यूज़िक से, उनकी लैंग्वेज से, उनके परफॉर्मेंस से, और इनकी ईटिंग पैटर्न से, उनके ईटिंग जो फूड स्टाइल्स हैं और उनके फूड के पैटर्न्स हैं, हम उनसे क्या करते हैं, कल्चर को रिकग्नाइज करते हैं। डैट कल्चर इज़ अ स्पेसिफिक कल्चर्स को एक्सप्लेन करते हैं। लाइक जैसे हमारे पाकिस्तान में सिंधी कल्चर है, बलोची है, खैबर पख्तून के PKK है, और उसमें भी फर्दर डिफरेंट सो मैनी कल्चर्स के अंदर जो है, अब सारे पंजाब के पंजाबी एक जैसे, बिकॉज पीपल बिलोंग्स टू अगेन डिफरेंट कल्चर, बिकॉज दिस इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स patterns। Once as a sociologist we must know each and every member of the society as the part of the culture। So तो उनके कल्चर के पार्ट को जब हम अंडरस्टैंड करेंगे तो we will come to know their problem and we can understand them without any discriminations and also preference that culture is better than this culture। So if we will understand their style and their pattern of behavior, so we will really come to know their actual culture। A.W. Green, culture is the socially transmitted system of idealized way which knowledge and practice produce and maintain as they change in time।
ठीक है। कल्चर क्या है? कल्चर इज अ सोशली ट्रांसमिटेड सिस्टम ऑफ आइडियलाइज्ड वे। इस कल्चर के जरिए जो है हम नॉलेज को अपने जो आइडियलाइज सिस्टम को क्या कहते हैं, अडॉप्ट करते हैं, ट्रांसमिट करते हैं थ्रू ईच अदर्स। इनके मुताबिक भी यही बात है। और आपने देखा ये एक लर्न पैटर्न होता है, जो कि हम कोई भी पैदाइशी कल्चर जो उसको डोमिनेट यानी कि उसका वो नेटिव कल्चर नहीं बन सकता जब तक कि वो उसकी सारी चीज़ों को सीखेगा, उसमें जब वो रहता है तो उसके सारे पैटर्न को अंडरस्टैंड करता है। दैट इज कॉल्ड कल्चर। एंड कल्चर इज प्रेजेंटिंग थ्रू द मटीरियल और नॉन मटीरियल परस्पेक्टिव। एच.टी. मजमडर, ठीक है। एच.टी. मजमडर ने कहा कल्चर इज द सम टोटल ऑफ ह्यूमन अचीवमेंट, मटेरियल एज वेल एज नॉन मटेरियल, कैपेबल ऑफ ट्रांसमिशन सोशियोलॉजिकली, दैट इज बाय ट्रेडिशंस एंड कम्युनिकेशन वर्टिकली एज वेल एज हॉरिजॉन्टली, ठीक है। सो उसने कहा है कि जो कल्चर है, जैसे मैंने पहले भी बात की, ये इनके मुताबिक भी है, पिछले लोगों ने भी कहा है, किसी ने, बहुत सारे लोगों ने अपने ओपिनियन में कहा है कि जी कल्चर मटेरियल भी है, नॉन मटेरियल। अगेन दैट मैन इज आल्सो सजेस्टिंग दैट, इनके पॉइंट ऑफ व्यू से उसने कहा कि यानी कि कल्चर्स में बहुत सारी चीज़ें, सम टोटल यानी कि सारी चीज़ों को ऐड टुगेदर एंड देन यू कैन जो है इनको क्या करते हैं, सारी चीज़ों को हम क्या करते हैं, ऐड टुगेदर, और फिर इन सारी कंसीडर टुगेदर। पहले हम सारी चीज़ों को इकट्ठा करते, फिर देन वी कैन कंसीडर टुगेदर, फिर हम सारी उनके सारे जो चीज़ें हैं, उनके पैटर्न्स होते हैं, सबको हम गैदर कर लेते हैं। कैपेबल ऑफ ट्रांसमिशन सोशियोलॉजिकली, एंड दैट इज बाय ट्रेडिशंस एंड कम्युनिकेशन वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली। फिर हम उनको हर एंगल से वर्टिकली भी देखते हैं और हॉरिजॉन्टली भी देखते हैं। ओके, सब हम बात करेंगे कि टाइप ऑफ कल्चर में भी अगेन आ जाता है, क्योंकि जो टाइप भी निकाली जाती है ना, हमने जब टाइप को कैटेगराइज करते हैं तो वी आर टेकिंग फ्रॉम द कॉन्सेप्ट। जैसे हमने पीछे डिफरेंट इंट्रो में भी पढ़ा कि क्या होता है कल्चर, कैसे एक सोशियोलॉजिस्ट को क्या कल्चर को क्यों अंडरस्टैंड करना ज़रूरी, कल्चर क्या होता है और उसके पर्सपेक्टिव से क्या होता है, और उसको ये सारा पैटर्न स्टडी करने की क्यों ज़रूरत होती है, ठीक है। सो टाइप में भी आ जाता है कल्चर इज मटीरियल, नॉन मटीरियल, रियल एंड आइडियल। ये इसकी 4 टाइप हैं, ठीक है, जिसमें हम मटीरियल कल्चर की भी बात करेंगे, नॉन मटीरियल कल्चर की बात करेंगे, रियल कल्चर की बात करेंगे, और आइडियल कल्चर की विद एग्जाम्पल हम शेयर करेंगे कि ये क्या होते हैं और इन चीज़ों में क्या बताया जाता है। जैसे आज हमने सीखा है कि जी मटेरियल कल्चर्स, फ्रॉम द मटेरियल कल्चर वी अंडरस्टैंड द मटेरियल एंड फिजिकल ऑब्जेक्ट, फॉर इंस्टेंस हाउस, रोड, व्हीकल, पेन्स, टेबल, रेडियो सेट, बुक, ये सारी चीज़ें जो थी दैट इज आल्सो प्रेजेंट इन द कल्चर, ठीक है। इसके बगैर कल्चर की तो आपको एग्जिस्टिंग फॉर्म में नजर आएगी ना, एग्जिस्टेंस नजर आती है कि दैट रियली दिस थिंग इज एग्जिस्ट, दैट इज द पार्ट ऑफ द कल्चर, ठीक है। सो बुक्स हैं, हर कल्चर की अपनी भी बुक्स होती हैं, हमें कल्चर्स में ये सारी चीज़ें नजर आती है। दीज आर द प्रोडक्ट ऑफ ह्यूमन एफर्ट टू कंट्रोल इज एनवायरनमेंट एंड मेक हिज लाइफ कंफर्टेबल एंड सेफ। इन सब चीज़ों से ये इंसान को फैसिलिटेट करती हैं, ठीक है, ताकि इंसान जो है कंफर्टेबल लाइफ, सेफ एंड कंफर्टेबल लाइफ जो है वो स्पेंड कर सके। सो नॉन मटेरियल कल्चर्स की अगर हम बात करें तो नॉन मटेरियल कल्चर जो है, in non-material culture we include non-material object, for example religion है, religion is non-material, nobody can see, ठीक है, इसको देख नहीं सकते, वी जस्ट यानी कि आपके स्टाइल से, आपके पैटर्न से पता चलता है, आपका जो आप जो पैटर्न ऑफर करते हैं, ठीक है, आपका जो बिहेव होता है टू प्रैक्टिस रिलीजन्स, वो पीपल कैन ओनली रिकॉग्नाइज बाय। आर्ट है, आइडियाज है, कस्टम्स है, वैल्यू सिस्टम है, एटीट्यूड है, नॉलेज है, ये सारे क्या है, नॉन मटेरियल चीज़ें हैं। इट डज नॉट हैव फिजिकल शेप, इसकी कोई फिजिकल शेप आपको नजर नहीं आएगी। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट इन डिटरमाइनिंग ह्यूमन बिहेवियर एंड हैज़ अ स्ट्रॉन्ग होल्ड ऑन एन इंडिविजुअल, both parts are interrelated with each other.
सो ये दोनों पार्ट्स हैं जो आपको इसके इंटररिलेटेड नजर आते हैं, दैट प्रेजेंट अ कल्चर एक्चुअल। सो हमने इसके बारे में देखा है कि ये मटेरियल भी है और नॉन मटेरियल भी है। नॉन मटेरियल में भी हमने बड़ी डिटेल के अंदर इसको अंडरस्टैंड किया कि ये क्या है और किस तरीके से ये प्रेजेंट किया जाता है, और मटेरियल को भी हमने देखा है, ठीक है, कि इसमें क्या क्या फिजिकली चीज़ें जो है मटेरियल में एग्जिस्ट करती हैं, व्हाट नॉन फिजिकल थिंग्स जो हम एग्जिस्ट करती हैं। अब रियल कल्चर की बात करें तो उसने कहा कि रियल कल्चर इज दैट विच कैन बी ऑब्जर्व्ड इन आवर सोशल लाइफ। अब जो रियल कल्चर है, ठीक है, वो आप हमारी सोशल लाइफ से हम ऑब्जर्व करते हैं। दिस कल्चर ऑन विच वी एक्ट अपॉन इन आवर डेली लाइफ इज अ रियल कल्चर। यानी कि जो हम किसी को हर दिन अपना पैटर्न जो यानी कि अपने एक्शन से शो करते हैं, वो हमारा रियल कल्चर होता है, ठीक है। विच वी एक्ट अपॉन इन आवर डेली लाइफ इज अ रियल कल्चर। इट इज दैट पार्ट ऑफ कल्चर विच the people adopt in their social life. For example, if a person says that she is a Muslim, will be, and when followed all the principle of Islam is the real, and when does not follow it is not real one, ठीक है। हम किसी कल्चर से हों, किसी रिलीजन से हों, या किसी कोई भी हमारा पैटर्न हो, जब हम जो होते हैं अगर उसके अकॉर्डिंगली हम शो नहीं करते तो वो हमारा रियल कल्चर नहीं होता, और अगर हम उसके अकॉर्डिंगली कर रहे होते हैं तो इसका मतलब है कि हम वो रियल होते हैं, ठीक है। यानी कि हमारा जो माइंड सेट है, जो हम बताना चाहते हैं, जो हम प्रेजेंट करते हैं, अगर हम एक्चुअल में शो नहीं करते तो वो हम रियल नहीं होते। समझ आ गई रियल कल्चर की? Okay, so now we'll talk to ideal cultures. The culture which is presented as a pattern to the people is called ideal culture. It is the goal of the society and never achieved fully because some part remain out of practice. This culture is explained in the book and speeches. आइडियल कल्चर जो होता है, जो हम बुक में देखते हैं, लेकिन हो सकता है आपको जो उसको प्रेजेंट किया जाता है, ठीक है, लेकिन एक्चुअली उसको पूरा प्रैक्टिस नहीं किया जाता, ठीक है। मोस्टली वी आर फाउंडिंग इट इन द बुक्स एंड स्पीचेस, ठीक है। लोगों को जरिए तो उनकी सकाफत को हम जो अंडरस्टैंड कर लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम सिंध में नहीं गए ना, हमने सिंधियों के साथ इतना ज़्यादा इंटरेक्शन है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हमें पता है कि वो एक उनका आइडियल कल्चर जो होता है, उनके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, लेकिन हम उनका जो कल्चर है वी कैन ओनली सी इन द बुक्स एंड स्पीचेस, मे बी यू कैन एक्सप्लोर थ्रू द नेट, ठीक है। सो हमें उनका पैटर्न नजर आता है। सो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कल्चर जो है, कल्चर इज नॉट इनेट, इट इज लर्न। कोई भी कल्चर्स में हम जो होते हैं ना, वो हम पैदाइशी नहीं होते हैं, हम हमेशा कल्चर लर्न करते हैं। किसी भी कल्चर का जो पैटर्न है, हम बाय बर्थ उस कल्चर में पैदा होने से उस कल्चर को अडॉप्ट नहीं। फॉर एग्जांपल एक बच्चा पाकिस्तान में पैदा होता है और जाके अमेरिका में रहता है, ठीक है, तो क्या वो पाकिस्तान का कल्चर लर्न करेगा? ऑफ कोर्स, और ना ही आपको उसे पता चल सकेगा कि वो पाकिस्तानी है या किसी और कंट्री से। वो जिस कल्चर में लर्न करेगा, जिस कल्चर के पैटर्न को लर्न करेगा, वो ही वो उसमें नजर आएगा। दैट्स व्हाई कल्चर इज नॉट इनेट, इट इज लर्न। समझ आ गया? सो कल्चर इज लर्न कहते हैं। अब हम इसकी एग्जांपल देखते हैं। अब हम बात करेंगे कल्चर लर्न कैसे है। The first essential characteristics of the culture is that
Listen carefully. So first essential characteristics of the culture is that it is learned. A child born in the Philippines but was brought in the United States after the birth may not develop trait characteristic of Filipino. He may learn behavior pattern characteristics of the American children, including language. पैदा फिलीपीन में हुआ, ब्रॉट अप कहाँ हुआ है, अमेरिका में है, तो उसका उसने जो लैंग्वेज सीखी, जो उसका उनका पैटर्न और बिहेवियर है, वो ऑफ कोर्स अमेरिकन है, तो ही विल बी कॉल्ड अमेरिकन फिलिपिनो. अब हम कल्चर की करैक्टरिस्टिक्स की बात करें तो करैक्टरिस्टिक्स में बहुत सारी करैक्टरिस्टिक्स होती है. क्वाइड होता है, कम्युनिकेटिव होता है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म है, फुलफिल नीड है, आइडियलिस्टिक है, इंटीग्रेट एलिमेंट है, लैंग्वेज इज द इट्स चीफ व्हीकल्स, सोशल एंड अडेप्टिव एज वेल. ठीक है. सो अब हम इनकी जो है एग्जाम्पल के साथ इन सब चीज़ों को अंडरस्टैंड करेंगे कि क्वाइड कैसे है. Culture is not something that one is born with. By culture, we means trait we that are learned through our socialization, habit, and thoughts. Thus, we find that man acquired a cultural behavior. This is possible because he has the capacity of symbolic communications. ठीक है. हर कल्चर्स में कोई भी बाय बर्थ कल्चर नहीं होता. कल्चर इज ऑलवेज एक्वायर्ड किया जाता है थ्रू द सोशलाइजेशन, हैबिट से, थॉट से. ठीक है. बिकॉज जो हम बिकॉज मैन इज ऑलवेज हैविंग अ बिहेवियर फ्रॉम द acquiring other cultures. This is possible because he has the capacity of symbolic communication. क्योंकि वो इसलिए होता है कि हर कल्चर की एक सिम्बॉलिकल लैंग्वेज होती है, उसका अपना एक पैटर्न होता है, पैटर्न ऑफ बिहेवियर होता है. फॉर एग्जाम्पल इसने द कनेक्शन बिटवीन द चाइल्ड टीचर्स एंड हिज पेरेंट. ठीक है. सो बिटवीन हिज चर्च एंड हिज नेबरहुड, यानी कि वो जिस जगह पे लर्न करेगा वो क्या करेगा, उससे भी जरूरी नहीं कि एक मदर से, वो दूसरी बहुत सारी चीज़ों से. तो इसलिए कल्चर का जो पैटर्न बनता है डेट इज कॉम्प्लेक्स, वो क्वाइड भी होता है और रियल भी होता है और आइडियल भी होता है. कम्युनिकेटिव कैसे है? Culture is communicated from one generation to the next. As a result of this, it is constantly accumulating and goes on added with the successive generations. Since culture can be communicated, the new generations benefit from the experience of the older one. In this way, culture becomes semi-temporary. It does not disappear with the extinctions of a particular individual of our group. कल्चर इसलिए कम्युनिकेटिव है क्योंकि हम जो है जो भी पैटर्न अडॉप्ट करते हैं वो जनरेशन टू होता है, जनरेशन टू जनरेशन होता है. और ये जो जितना भी हमारा पैटर्न है वो क्यूमुलेट होता है, डेट गोज सक्सेसिव जनरेशन. जब भी हम किसी स्ट्रॉन्ग किसी का देखते हैं, किसी जनरेशन को, किसी कल्चर का जो जो देखते हैं, तो उनका एक स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस, उसका बैकग्राउंड बहुत जो स्ट्रॉन्ग होता है, जिसकी वजह से वो जनरेशन टू जनरेशन. अब देखो, अगर पंजाबियों का देखो, ठीक है, तो पंजाबियों की एक अपनी करेक्टरिस्टिक्स होती है. अगर पख्तून्स की देखो तो उनमें है, सिंधीज की देखो तो उन्होंने क्या है, जनरेशन टू जनरेशन चीज़ों को उनकी लैंग्वेज से, उनकी हर चीज़ उन्होंने क्या किया था, जनरेशन टू जनरेशन इसको क्या किया था, लर्न किया होता है थ्रू कम्युनिकेशन. एंड द न्यू जनरेशन बेनिफिट फ्रॉम द एक्सपीरियंस ऑफ द ओल्डर वन. और जो नई जनरेशन होती है उनको वो उनके जो ओल्ड चीज़ें हैं, ट्रेडिशनल चीज़ें, उनसे उनको वो बहुत बेनिफिट देती, डेट मेक देम स्ट्रॉन्ग. ठीक है. इन दिस वे कल्चर बिकम द सेमी टेम्परेरी. इट डज नॉट डिसअपियर विद द एक्सटर्नेशंस ऑफ अ पर्टिकुलर इंडिविजुअल और ग्रुप. ठीक है. सो कल्चर जो कम्युनिकेटिव है वो बिकॉज वी आर जो कम्युनिकेट करते हैं फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन. और ये सारी जो कंस्टेंटली एक्यूमुलेटेड चीज़ें होती रहती हैं फॉर द सक्सेसिव जनरेशन. और फिर ये क्या करती हैं कि ये जो न्यू जनरेशन होते हैं गेट बेनिफिटेड फ्रॉम दिस ओल्डर वन. कल्चर जो है इवॉल्व इनटू द कॉम्प्लेक्स फॉर्म. कल्चर हमेशा इवॉल्व कॉम्प्लेक्स, जैसे मैंने बताया था, फिर हम उसको एज अ पार्ट ऑफ कल्चर अंडरस्टैंड करते ताकि हम उसके कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, पहले तो हमें इंडिविजुअल कल्चर को अंडरस्टैंड करना पड़ता, फिर इसका हम उसके कॉम्प्लेक्स पैटर्न के लिए हमें अंडरस्टैंडिंग ईजी हो जाती है. कल्चर इवॉल्व इनटू द कॉम्प्लेक्स फॉर्म थ्रू डिवीजन ऑफ लेबर्स विच डेवलप स्पेशल स्किल्स एंड इंक्रीज द independence of the society member.
यानी जो कल्चर्स है, अगर आप देखें तो डिविजन्स ऑफ लेबर, आप देखें हर किसी डिविजन्स ऑफ लेबर्स होती है, डिफरेंट लोगों के डिफरेंट काम होते हैं, ठीक है। एवरीबॉडी हैज़ देयर ओन पार्ट ऑफ इन द कल्चर, उनका अपना पार्ट होता है, उनका अपना जो है वो एक वर्क रिकग्निशंस होती हैं, जिससे वो क्या करते हैं, तो आप जब उनके सारे को करते तो कहते हैं, हम कहते हैं ना इस कल्चर का पार्ट है, ये भी करते हैं, इनका ये भी कल्चर होता है, ये भी कल्चर होता है, क्योंकि एवरी यूनिक एंड इंडिविजुअल हैव देयर ओन डिवीजन ऑफ लेबर, यानी कि उनके अपने काम करने का तरीकाकार होता है, उनके पास स्किल्स होती हैं जो कि इनकी इंडिपेंडेंस, जो कि किस मेंबर ऑफ द सोसाइटी के जो है इंडिपेंडेंस को इंक्रीज करती है। फुलफिल नीड, कल्चर कैसे फुलफिल नीड करता है? कल्चर फुलफिल दोज एथिकल एंड सोशल नीड, एथिकल भी करता है। एथिकल कैसे करता है कि आपको बस जो है आपके राइट की बात करते हैं, आपकी फैमिली राइट है, आपका इंडिविजुअल राइट है, आपका सोसाइटल राइट है, ठीक है। सो बिकॉज यू आर द रेस्पेक्टफुल मेंबर ऑफ द सोसाइटी, ठीक है, वो आपको सेव करेगा। सोशल में आपको बॉन्डिंग, लव, अफेक्शन, हर चीज़ जो है वो कल्चर जो आपकी बेसिक नीड को आपको रहने के लिए घर मिलता है, आपकी फैमिली होती है, ठीक है। और हर चीज़ जो एक फैमिली के अंदर जो जैसे हम अपनी डेली लाइफ को सर्व करते हैं, इट इज़ एग्जांपल्स ऑफ सोशल नीड, ठीक है। हमें घर क्या क्या शेल्टर देता है, ठीक है, हमारा एक शेयर्ड पैटर्न होता है, हम एक दूसरे से क्या कहते हैं रिलेशनशिप होता है, इंटरेक्शंस होता है, ठीक है। तो ये सारी हमारी नीड को फुलफिल करता है। सोशल हैबिट फॉर्म अ पार्ट ऑफ कल्चर्स, तो हमारी हैबिट भी जो है वो एक फॉर्म ऑफ कल्चर है। हैबिट कैन बी परफॉर्म ऑफ दोज एक्टिविटीज ओनली विच टेंड टू फुलफिल सम नीड्स। For example, religion used to fulfill the solidarity and integrative need of society. Our need for food, clothing, shelters, जैसे मैंने इसके एग्जांपल मैंने नीड फुलफिल की बताई थी आपको, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, इंडिविजुअली भी करता है और इंटीग्रेटिव वे में भी आज सोसाइटी जो है हमारी नीड को, सोसाइटी में हमारी नीड जो फुलफिल होती है, सोसाइटी इसको पूरा करती है। आर नीड फॉर फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, नेम, फादर, स्टेटस, पोजीशन आर फुलफिल्ड एज पर द कल्चरल वे से ये हमारी नीड को जो क्या करते हैं, फुलफिल करते हैं। आइडियलिस्टिक, हम बात करेंगे आइडियलिस्टिक कैसे। व्हेन वी टॉक अबाउट द कल्चर we have in mind those ideal pattern or norm of behavior according to which the member of the society attempt to conduct themselves, कि वो किस तरीके से अपने आप को प्रेजेंट करता है, ये उसका एक आइडियल, जैसे हमने आइडियल कल्चर पढ़ा था ना, इसकी डेफिनेशन भी पढ़ी थी कि आइडियल कल्चर होता क्या है, ठीक है। दीज आइडियल नॉर्म्स आर द पैटर्न गेन इन द एक्सेप्टेंस सोसाइटी। एग्जाम्पल पढ़ेंगे इन जैनी एंड Malcolm, society marriage is the seen as a lifelong bond, ठीक है। हम अगर मैरिज की बात करें सोसाइटी में एक आपको पता है ये लंबे अरसे का आपका कमिटमेंट होती है। द आइडियल कल्चर इज दैट मैरिज शुड लास्ट फॉर वन इंटायर लाइफ एंड द मैरिड कपल शुड नेवर ब्रेक द यूनियंस। ये एक कल्चर का अगर कोई करता है तो वो कल्चर आइडियल आपको कल्चर नजर नहीं आएगा कि आपकी वो कल्चर की जो है वो आपका पैटर्न नहीं है, आपकी वो प्रैक्टिसेस नहीं है, बट आप उसको जो है पूरा नहीं कर रहे हैं, तो वो आपकी एक आइडियल फॉर्म नजर नहीं आएगी, ठीक है। सो दिस इज द एग्जांपल्स ऑफ आइडियलिस्टिक कल्चर। एवरी कल्चर हैज ये क्या है, इंटीग्रेट एलिमेंट, इसके कैसे हैं, एवरी कल्चर हैज एन ऑर्डर एंड अ सिस्टम, its various parts are integrated with each others. Any new element that is introduced into the culture also get integrated. Likewise, it is true that those culture which are more open to the external influence are comparatively more heterogeneous, but at least some degree of integration is evident even in them. सो एग्जाम्पल हम इसमें देखेंगे कि जैसे कल्चर एलिमेंट को हम क्या देखेंगे, कल्चर सेट ऑफ पैटर्न होता है ह्यूमन एक्टिविटी विद इन द कम्युनिटी एंड सोशल ग्रुप, यानी कि आप में इसमें इंसान का जो बिहेविंग पैटर्न है आपको उसका कम्युनिटी में नजर आएगा, कम्युनिटी में एंड सोशल ग्रुप में। एंड सिंबॉलिकल स्ट्रक्चर दैट गिव द सिग्निफिकेंस सच एक्टिविटी, कस्टम है, लॉ है, ड्रेस है, ये सारा जो है ये इसका इंटीग्रेट एलिमेंट है, यानी कि बहुत सारी कल्चर्स में इसके अंदर सब जो
जो इसके एलिमेंट है वो आप उसके ज़रिए आप उसको रिकॉग्नाइज करेंगे कल्चर्स को, ठीक है, कि वो इंटीग्रेट कैसे है। कस्टम लॉ होते हैं, ड्रेस होता है, आर्किटेक्चर टेक्चुरल स्टाइल्स होते हैं, सोशल स्टैंडर्ड होते हैं, रिलीजियस बिलीफ्स होते हैं, एंड ट्रेडिशंस आर द एग्जांपल ऑफ कल्चर एलिमेंट, ठीक है। सो ये जो हम अगर हमने कल्चर एलिमेंट को देखना है तो हम उसके सिस्टम से और उसका ऑर्डर से अंडरस्टैंड करेंगे, उसका पैटर्न, इंटीग्रेटेड पैटर्न क्या है, वो किस तरीके से अपने आप को, वो कल्चर अपने आप को इंटीग्रेट करा रहा है या अपने आप को वो जो है शो करा रहा है कि किस तरह उसका पैटर्न, जब हम उसको पढ़ेंगे तो इट इज़ अ ट्रू दोज कल्चर विच आर मोर ओपन टू द एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस, ठीक है। तो ये जो आप उनके अंदर जो हिट्रोजेनेसिस जो चीज़ें आपको एक जैसी चीज़ें नज़र आ रही होंगी, बट लीव सम डिग्री ऑफ इंटीग्रेशन एज एविडेंट इन दैम, उनके अंदर जो आपको इंटीग्रेशन जो है वो एज एविडेंट आपको मिलेगी कि दैट दे आर इंटीग्रेटेड, ठीक है, कि उनकी जो जो चीज़ें हैं वो प्रॉपरली जो इंटीग्रेट करती हैं। सेवंथ करेक्टरिस्टिक लैंग्वेज, ठीक है, लैंग्वेज इट्स चीफ व्हीकल है, ठीक है। लैंग्वेज जो है, लैंग्वेज इज द बिग सिंबल टू रिकॉग्नाइज द एनी सिंबल, ये कल्चर की खसूसियत होती है, करेक्टरिस्टिक्स होती है। मैन लिव not only in the present but also in the past and futures. He is enabled to do this because they possess the language skills which transmit to him what was learned in the past and enable him to transmit and accumulated wisdom, ठीक है। हम किसी भी कल्चर को अंडरस्टैंड करने के लिए उसकी लैंग्वेज जो है दैट इज द सिंबल टू प्रेजेंट दैट कल्चर्स। सोशल, although individual takes some part in the transmissions and communication, culture is a social rather than the individual in nature. Culture is inclusive of the expectations of the member of the group. Man cannot create or generate culture in isolations because we all are living, even जो है सोशल जो है इंटरेक्शंस के बगैर आप किसी घर में, किसी सोसाइटी में जो है किसी ऑर्गेनाइजेशंस में अपने पीयर के साथ सोशल रिलेशनशिप के बगैर आप, जब तक कि आपके बीच में कम्युनिकेशंस नहीं होती, वी कैन नॉट ट्रांसमिट आवर आइडिया, एक्सचेंज आवर आइडिया, शेयर आवर ओपिनियन, ठीक है। सो ये जो है किसी भी कल्चर्स को आपने देखा वो आइसोलेशंस में कभी भी एग्जिस्ट नहीं करता, दे आर ऑलवेज हैविंग इन अ सोशल फॉर्म, have relationship with each other, have interaction with each others. सो लास्ट हम पढ़ेंगे अडेप्टिव और इसके बाद हम एंड कर देंगे, ठीक है। अडेप्टिव कैसे, एज इन्वायरमेंट चेंज सो डज कल्चर, जब जैसे उसने अडेप्टिव है क्या, जैसे इन्वायरमेंट चेंज होती कल्चर चेंज होता है। थैंक्स टू this constant information, culture is constantly adapt to external forces. However, once it's developed, the influence of the natural environment began to decrease. In addition, the various aspects of the culture is also undergo development, some internal adaptation among them in the necessitated as a result. कोई शेयर करेगा adaptive culture की example? Any one of you, please share your opinion about regarding the adaptive cultures. As I read the class, slides, maybe you got the idea from the slides and you can share with me. Zabloon, I'm asking to you, please tell me about this adaptive. Yes. So if you have any questions regarding these lectures, hope you understand.
Adopted cultures nowadays is that traditions of wearing is changed now. Pakistani also wearing the European outfit. Hmm. See the more example and search on it, and we will discuss in the next lecture. So we'll start from. I'll ask you, please keep it in your mind classification of cultures. So we'll start from the classifications of the cultures. Okay. So now you are less. Only 39 students are present. So give me a chance to mark the your attendance and do not send triple P and fourth P and fifth P. Okay. So I know all of you are present and it show 40 present now. Okay. So I'll mark you 40 student present. It is already showing it to me.